A very good day to all the students. Today we will be starting chapter number 1 on the subject of auditing from your third year BCom syllabus. The chapter number 1 deals with introduction to the audit and various basic concepts of auditing like the meaning of audit, the definition of audits, the scope, objectives, advantages and limitations of audit are discussed in this chapter. Besides that, we will also be discussing the relationship of auditing with various other disciplines and differences between accountancy and auditing and investigation and auditing. So let us start with the chapter number 1, Introduction to Audit. The term audit has been derived from a Latin word audire. Okay, now audire is a Latin word. A similar Latin word which you might have heard many times is the word audio. Now, what does the word audio mean? It means sound. So audire means to hear something. Okay, audio means what? To hear something. The process of hearing is called audire. So what used to happen in olden days, a person was appointed to check the accounts of the parties who were responsible for financial transactions. For example, suppose there is a merchant and he is having 10 ships, and what those ships do, they carry the goods from one place to another and trade them. At the end of a period, that merchant wants to know that whether proper accounting of all the income has been done or not. So what he does, he appoints a certain person, an experienced senior person, and that experienced senior person hears all the transactions which have been occurred by the persons who were trading on behalf of the merchant. And after hearing all the financial transaction, he will give an opinion that whether all the transactions have been properly accounted for or not. So the person who used to hear all these transactions in the earlier days was known as auditor. Hence, in modern world also we use the term auditor. However, as the terminologies of accounting have been developed in recent times, the audit is not only limited to checking the financial transactions of the firm. The term of audit or the scope of audit has widened. Nowadays, the auditor's responsibility is to inspect the entire financial state of affairs of the concern, and he needs to ascertain whether the financial statements like balance sheet and profit and loss account of an enterprise are showing true and fair view of the business or not. So in modern times, the scope of audit is to ascertain whether the balance sheet and profit and loss account exhibits true and fair view of financial state of affairs of concern or not. So in entire auditing, what we will be trying to do is we will be establishing an opinion that whether the accounts have been maintained properly or not, and whether they display a correct position of the business or not. So now let us look at certain important definitions of auditing. So the first definition of auditing is given by L.R. Dixay. Let us read down the definition given by him. An audit is an examination of accounting records undertaken with a view to establish whether they correctly and completely reflect the transaction to which they purport or relate to. In some instances, it may be necessary
to ascertain whether the transactions themselves are supported by proper authority or not. So this is a definition given by L.R. Dixay. Now let us break down this definition and understand it in parts. The first part is audit is an examination of accounting records. Audit में क्या होता है? Audit में examination होता है. किस चीज़ का एग्जामिनेशन होता है? तो आपके फर्म के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का एग्जामिनेशन होता है. ओके, सो फर्स्ट पार्ट क्या है? ऑडिट में एग्जामिनेशन होता है. किस चीज़ का एग्जामिनेशन होता है? तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का एग्जामिनेशन होता है. क्यों होता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का एग्जामिनेशन? विथ अ व्यू टू इस्टेब्लिश वेदर दे करेक्टली एंड कंप्लीटली रिफ्लेक्ट द ट्रांजैक्शंस. ओके, क्यों होता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का एग्जामिनेशन? क्यों होता है? ये जानने के लिए कि सभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करेक्टली और कंप्लीटली रिकॉर्ड किए गए हैं या नहीं किए गए, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? तो ऑडिट करते हैं. In some instances, it may be necessary to ascertain whether transactions are supported by proper authority. कुछ transactions ऐसे होते हैं जो बहुत important होते हैं और वो transactions proper authorities के थ्रू ही आने चाहिए. जैसे कि सपोज एक कंपनी है और उस कंपनी को कोई बड़ा मशीन इंपोर्ट करना है, तो मशीन इंपोर्ट करने का जो डिसीजन है वो टॉप मैनेजमेंट ने लेना चाहिए और उस डिसीजन के बेसिस पे कंपनी ने मशीन खरीदना है. तो यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन होने वाला है, मशीनरी परचेसिंग का जो ट्रांजैक्शन होने वाला है, इट शुड बी सपोर्टेड बाय प्रॉपर अथॉरिटी. मीन्स यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन है ये हायर अथॉरिटी से, टॉप मैनेजमेंट से आना चाहिए और टॉप मैनेजमेंट के प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए. कोई ना कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए जहाँ से पता चले कि टॉप मैनेजमेंट ने कहा है कि मशीन खरीदो. सो यहाँ पे अकाउंटिंग में, ऑडिटिंग में क्या होगा कि जो ऑडिटर होगा वो चेक करेगा कि जो मशीन खरीदा गया है वो प्रॉपरली अथॉरिटी के परमिशन के बाद ही खरीदा गया है या डायरेक्टली खरीद लिया गया है. तो ऑडिटिंग में क्या होता है, आप एग्जामिनेशन करते हो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के, ये जानने के लिए कि सभी ट्रांजैक्शंस करेक्टली और कंप्लीटली रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं, और जो इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस है वो इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस प्रॉपर अथॉरिटीज़ की परमिशन से एग्जीक्यूट हुए हैं या नहीं. नाउ ये जो डेफिनेशन है डिक्से का, इट लेज अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग. ओके, ऑब्जेक्टिव्स, ऑडिटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्लियरली इस्टेब्लिश नहीं करती है ये डेफिनेशन, बट ये डेफिनेशन क्या करती है? It gives a greater emphasis on the techniques of auditing. So the main focus of this definition is on checking and authority. हर एक ट्रांजैक्शन प्रॉपरली चेक होना चाहिए और हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे प्रॉपर अथॉरिटी होना चाहिए. दिस इज व्हाट द definition of L.R. Dixay mentions. The next definition of auditing is given by Montgomery. Let us read the definition. Auditing is a systematic examination of books and records of the business or other organization in order to ascertain or verify and to report upon the fact regarding its financial operations and results thereof. Okay, so अब इस definition को parts में हम लोग divide करते हैं. Auditing क्या है? Auditing is a systematic examination. Okay, ऊपर का जो definition था उसमें audit was just an simple examination, just an examination, but here Montgomery has added one more word. Auditing क्या है? It's a systematic एग्जामिनेशन. ओके, अगेन किस चीज का एग्जामिनेशन करना है? तो बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस, किसी भी बिजनेस के बुक्स एंड रिकॉर्ड्स का सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन करना है. अब मॉन्टगोमरी का जो डेफिनेशन है वो सिर्फ बिजनेसेस तक सीमित नहीं है,
Montgomery says that systematic examination of books and records of business or other organizations. Okay, so here the scope of auditing is expanded. Montgomery का कहना है कि सिर्फ businesses का ही नहीं audit होता है, बाकी जो दूसरे concerns होते हैं जैसे कि NGOs होती है, trust होती है, इन लोगों का भी audit जो है वो इन चीज़ों का भी audit हो सकता है. So अब ये audit क्यों होता है, क्यों होती है checking? In order to ascertain और verify, ascertain भी करना है या verify करना है, और सिर्फ ascertain और verify नहीं करना, एक report भी देना है. Okay, to report upon the fact regarding the financial operations and the results of the financial operations. तो Montgomery का जो definition है वो डिक्से के definition से अलग कैसे है? Montgomery का जो definition है वो auditing का scope जो है वो business से expand करता है और extend करता है दूसरे organizations के लिए भी. Okay, it extends the application of audit to other organizations also. At the same time, Montgomery क्या कहता है कि examination should be systematic, means Montgomery focuses that audit should be carried on scientifically and systematically. And at the end of the audit, auditor ने क्या करना है, एक report बनाना है, और इस report के through जो auditor है वो आपके बिजनेस के फाइनेंशियल ऑपरेशंस और आपके बिजनेस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का ऊपर एक ओपिनियन देगा या रिजल्ट बताएगा कि आपके बिजनेस के फाइनेंशियल ऑपरेशंस का क्या रिजल्ट है. सो दिस इज द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिट गिवन बाय मॉन्टगोमरी. द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग इज गिवन बाय R.K. Motz. The auditing is concerned with verification of accounting data, with determining the accuracy and reliability of accounting statement and reports. So R.K. Motz का जो definition वो क्या कहता है कि auditing क्या है? Auditing is a process of verification. Okay, verification of what? तो verification of accounting data. What is the objective behind the verification of accounting data? Objective is to determine the accuracy and reliability of accounting statements. Okay. Now, बहुत बार हमारे organization के जो भी accounting statements है उन पर बहुत सारे लोग rely करते हैं. कुछ investors होते हैं आपके कंपनी के जो आपके कंपनी में invest करना चाहते हैं. बैंक्स होती है जो आपके कंपनी को लोन या फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे. आपके क्रेडिटर्स होते हैं जो आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर आपको जो गुड्स होंगे वो क्रेडिट पर देंगे. तो ये सभी लोग जो है व्हाट दे डू, दे आर डिपेंडेंट ऑन द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स पे वो लोग अपना रिलायंस रखते हैं. सो ऑडिटर का काम क्या होता है कि ऑडिटर जो होता है ही हैज़ टू वेरीफाई योर अकाउंटिंग डेटा एंड डिटरमाइन कि आपके जो भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स है वो एक्यूरेट है या नहीं, और उन पे भरोसा किया जा सकता है या नहीं, वो रिलायबल है या नहीं. दिस इज द थर्ड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग बाय R.K. Motz. So after discussing the definitions of audit, now let us discuss the scope of audit. What is meant by scope of audit? जो ऑडिटर होता है what are his duties, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती है, उसे क्या काम करना होता है, वो ड्यूटीज़ और एक्टिविटीज़ जो ऑडिटर की होती है वो डिस्क्राइब की जाती है स्कोप ऑफ ऑडिट के थ्रू. जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ हुई, वैसे कंपनीज़ की साइज़ में भी ग्रोथ हुई, और जैसे जैसे कंपनीज़ के साइज़ में ग्रोथ हुई, कंपनी के अकाउंट्स को एक इंडिपेंडेंट पर्सन ऑडिट करे, इस चीज़ों की नीड होने लगी. देयर वाज अ नीड फॉर इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज. 1970s के बाद
जो ऑडिटिंग का स्कोप था उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपांशन आया। पहले ऑडिटिंग में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस से रिलेटेड कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ, ये ही चेक करने का काम ऑडिटर का होता था। लेकिन 1970s के बाद बहुत सारे नए कंसेप्ट्स ऑडिटिंग में ऐड हुए, जैसे कि टैक्स ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशंस ऑडिट और बहुत सारे दूसरे ऑडिट्स जो है वो ऑडिट के जो ट्रेडिशनल टर्म्स थे उसमें ऐड हुए, जिसकी वजह से ऑडिट और ऑडिटर का स्कोप जो है, काम करने का स्कोप जो है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड हो चुका है। स्कोप बढ़ने से जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था ऑडिट का कि फ्रॉड डिटेक्ट करो, एरर्स डिटेक्ट करो, वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी अभी चेंज हो चुका है। जो मॉडर्न ऑडिटर होता है वो सिर्फ फ्रॉड या एरर्स डिटेक्ट नहीं करेगा, उसका काम जो होगा वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने फेयरनेस से बनाए गए हैं, कितने एक्यूरेटली बनाए गए हैं और कितने ऑथेंटिक है, इस पर भी रिपोर्ट करना जो होगा वो ऑडिटर का काम होगा। तो अगर हम लोग स्कोप ऑफ ऑडिट डिस्कस करते हैं तो द स्कोप कैन बी डिस्कस्ड एंड स्कोप विल बी वेरी क्लियर फ्रॉम द डिस्कशन ऑन फॉलोइंग ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर। तो कुछ ड्यूटीज है ऑडिटर की, वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, जिसपे से ऑडिट का जो स्कोप है वो एक स्कोप क्लियर होता है। तो फर्स्ट ड्यूटी इज ऑफ द ऑडिटर इज टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स। ओके, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मीन्स व्हाट, कि आपके जो बुक्स में जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए हैं वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं। मीन्स डेबिट वाला ट्रांजैक्शन प्रॉपरली डेबिट हुआ है, क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन प्रॉपरली क्रेडिट हुआ है, जिस अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था उसी अकाउंट को डेबिट हुआ है, और जो अमाउंट है वो भी सेम है या नहीं। इसी के साथ साथ जो टोटल्स होती है अकाउंट्स की वो भी एक्यूरेट है या नहीं, ये चेक करने का काम ऑडिटर का होता है। सेकेंड ड्यूटी जो होती है ऑडिटर की वो ये है कि टू चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विथ हेल्प ऑफ रिलेवेंट वाउचर्स। जो भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज होगी उन एंट्रीज को जस्टिफाई करने के लिए कोई ना कोई वाउचर प्रेजेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन के पास। जैसे कि सपोज आप कोई सेल करते हो तो आपने बिल बनाया होगा सेल का, बिल का एक कॉपी आप कस्टमर को दोगे और सेकंड कॉपी बिल का आपके फाइल में होगा। तो जब ऑडिटर सेल्स की फिगर्स को ऑडिट कर रहा है या वाउच कर रहा है, तब वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के सेल्स के साथ साथ आपके जो वाउचर्स है या बिल्स की जो कॉपीज़ है उनको एक साथ वाउच करेगा, ये पता करने के लिए कि सभी सेल्स के जो बिल है वो प्रॉपरली अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में एंटर किए हैं या नहीं, सभी सेल्स की जो वैल्यू है वो प्रॉपरली अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आपने एंटर की है या नहीं। सो दिस इज द सेकेंड ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो रिलेवेंट वाउचर्स, इनवॉइसेस और करस्पॉन्डेंस के साथ चेक करता है। थर्ड स्कोप इज to verify the assets and the liabilities shown in the balance sheet। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उनके बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स होगी और कुछ लायबिलिटीज़ होगी। ऑडिटर का काम होता है ये चेक करना कि एसेट्स जो है वो प्रॉपर वैल्यू पे डिस्प्ले की गई है, एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन है वो प्रॉपरली प्रोवाइड किया गया है, और एसेट्स की वैल्यू में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया है। बिसाइड्स डेप्रिसिएशन कोई सिग्निफिकेंट चेंज अगर कोई आया है, अगर आपने कोई नया एसेट खरीदा होगा या कोई एग्जिस्टिंग एसेट बेचा होगा तो उसका प्रॉपर अकाउंटिंग हुआ है या नहीं हुआ, ये चेक करना ऑडिटर का काम है। सिमिलरली आपके बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज़ है वो प्रॉपर वैल्यू पे डिस्प्लेड है, उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग हुई है और उनका वैल्यू जो है वो
प्रॉपरली चेक किया गया है, ये काम ऑडिटर का होता है। फोर्थ ड्यूटी जो है ऑडिटर की वो है टू रिपोर्ट टू क्लाइंट ऑन बेसिस ऑफ हिज फाइंडिंग। तो ऑडिटर ने पहले अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करी अकाउंट्स की, उसके बाद आपके अकाउंट्स के जो एंट्रीज थे उनको रिलेवेंट वाउचर्स के साथ चेक किया। फाइनली ऑडिटर ने आपके बुक्स के एसेट्स और लायबिलिटीज़ को चेक किया, वेरीफाई किया, और ये सभी काम करने के बाद ऑडिटर के पास कोई ना कोई एक फाइनल कंक्लूजन होगा। ऑडिटर मस्ट हैव रीच्ड एट अ फाइनल कंक्लूजन रिगार्डिंग द एक्यूरेसी ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये जो फाइनल कंक्लूजन होगा ऑडिटर का, वो कंक्लूजन ऑडिटर जो है वो एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाएगा, और उस रिपोर्ट के ज़रिए ऑडिटर जो है वो उस अपनी फाइनेंशियल फाइंडिंग्स को अपने क्लाइंट के सामने रखेगा। इस रिपोर्ट को हम लोग कहते हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट जो है ये लास्ट में वंस आपका पूरा ऑडिट ख़त्म हो जाता है उसके बाद ये रिपोर्ट जो है ये ऑडिटर अपने क्लाइंट के पास सबमिट करता है। सो दिस इज़ द स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। सो this brings us to the end of our today's lecture. Today we discussed the meaning and definition of auditing, as well as we also discussed the scope of auditing. Thank you.